السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ ہماری پیاری اسلامی ماؤں اور بہنوں اور قابل احترام بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور عزیز بچوں و بچیوں، آج کے اس درس کا عنوان ہے جنت کی بہاریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت کی بہاریں عطا فرمائے اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق اللہ کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا و آخرت میں اللہ تعالیٰ تو ہم سبوں کو اپنی نعمتوں سے اور اپنے احسانات، فضل اور کرم سے مالا مال فرما دے، آمین۔ ہر مسلمان عمومی طور پر یہ بات جانتا ہے کہ آخرت میں مرنے کے بعد دو ہی ٹھکانہ ہے، یا تو جنت اور یا تو جہنم۔ مومنوں کے لیے، پکے سچے مسلمان بندوں اور بندیوں کے لیے، نیکوکار پرہیزگار اللہ سے ڈرنے والے بندوں کے لیے اللہ تعالی نے جنت دینے کا وعدہ فرمایا ہے، اور کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے جہنم میں لے جانے والے گناہ کرنے والوں کے لیے اللہ تعالی نے جہنم کا وعدہ فرمایا ہے۔ اور جو جنت میں داخلے سے خوش نصیب ہو گیا، سعادت مند ہو گیا، وہ ہمیشہ ہمیش جنت کے اندر رہے گا۔ جہنم اللہ کا غضب ہے، اس کے ذریعہ اللہ تعالی جسے چاہے گا عذاب دے گا، اور جنت اللہ کی رحمت اور مہربانی ہے۔ اللہ تعالی اس جنت کے ذریعہ جسے چاہے گا
نہیں کر پائے گا، نہیں پائے گا۔ جنت اللہ تعالی نے اپنے مقرب قریبی نیکوکاروں کے لیے خوب بنایا ہے، خوب سجایا ہے، خوب سنوارا ہے، اور اللہ تعالی نے اس کو اتنا پر آرام، پر سکون، پر اطمینان بنا دیا ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جنت کے اندر وہ نعمتیں، وہ بہاریں ہیں، وہ خوشیاں، وہ شادمانیاں، وہ آرام، وہ عیش اور سکون ہے، ما لا عین رأت، جسے دنیا کی کسی آنکھ نے دیکھا بھی نہیں ہے، ولا اذن سمعت، اور نہ اس کے بارے میں دنیا کے کسی کان نے سنا ہے، ولا خطر علی قلب بشر، اور کسی بھی آدمی کے دل میں اس کا تصور اور خیال بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اتنا بہترین بنا دیا ہے کہ جنت کی ساری نعمتوں کا تصور اور خیال کرنا ناممکن سی بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح احادیث کے اندر جنت کی کچھ نعمتوں کا، جنت کے کچھ آرام اور آسائش اور عیش کا، اور جنت کے کچھ بہاروں کا ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ آپ اگر سورہ آل عمران جنت الفردوس عطا فرمائے اور ان اعمال کے کرنے کی توفیق اور ہدایت دے جن سے اللہ راضی ہو کر کے
تعالیٰ نے اپنے جنتی بندے کی زیب و زینت ٹیپ ٹاپ اور سجانے کے لیے اپنی پسند سے سورہ رحمان آیت نمبر 56، 57 اور 58ہیروں سے، دنیاوی موتیوں سے کہیں زیادہ خوبصورت، چمکیلی، سرمگی ہوں گی، اور وہ
بہاریں عطا کرے گا۔ میرے نوجوان ساتھی اور دوستو، آج دنیا کے اندر میں نے تو چند آیتیں بطور مثال جگانے کے لیے، سمجھنے کے لیے پیش کیا ہے۔ اسی طریقے سے چاہے وہ جنتی مرد ہوں یا جنتی عورتیں ہوں، چاہے 70 سال تک دنیا کے اندر جیے یا 100 سال تک جیے یا
जन्नती औरतों के लिए अल्लाह ताला हम सब की बीवियों को, हम सब की बच्चियों को, हम सब की बहुओं को, हम सब की बहनों को, सारे मुसलमानों की माओ बहनों बेटियों को अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में जगह दे और उन्हें जन्नत में ले जाने वाले काम करने की तौफीक दे। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी की रिवायत है, अगर जन्नती औरत, जन्नती खातून यानी जिसे अल्लाह ताला ने जन्नत में दाखिल कर दिया, जन्नती खातून दुनिया में एक दफा झांक ले तो पूरब और पश्चिम के दरमियान, मशरिक और मगरिब के दरमियान हर चीज को रोशन कर दे और सारी फिजा एक निहायत निहायत उम्दा तरीन खुशबू से महक उठेगा। अगर एक जन्नती खातून दुनिया की तरफ झांक दे तो कहां तक चमक और दमक और रमक और रोशनी फैल जाएगी, पूरब और पश्चिम के बराबर। और इतनी ये फजा, वातावरण इतनी मुअत्तर, इतनी खुशबूदार हो जाएगी कि वैसी खुशबू हमने और आपने या दुनिया के बड़े से बड़े मालदार ने नहीं सुना है। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनन तिरमिज़ी के हवाले से मैं बयान कर रहा हूं, जन्नत के महल्लात सोने और चांदी की ईंटों से बने हैं। एक ईंट सोने की, दूसरी ईंट चांदी की। आप सोने का रंग जानते हैं, आप चांदी का कलर जानते हैं। जरा तसव्वुर करें, अल्लाह हम सबको नवाज दे कि किसी भी इमारत या बिल्डिंग में एक ईंट सोने की लगी हो और दूसरी ईंट चांदी की लगी हो तो कितना पुरौनक, कितना काबिले दीद और कितना हसीन तरीन और खूबसूरत होगा। और जन्नत के महलों, दीवारों में एक ईंट सोना, एक ईंट चांदी के अलावा उसके जो गारे होंगे निहायत तेज से तेज खुशबूदार मिस्क के होंगे। और उसके ये कंकरेट या संगरेजे या खरसाना जिसको आप लोग कहते हैं, संगरेजे मोती और याकूत के हैं और उसकी मिट्टी ज़अफ़रान की है। ये जन्नत की बनावट है, ये जन्नत की सजावट है। जब जन्नत की दीवारें इतनी हसीन और जमील पुररौनक होंगी तो उस दीवारों के छहर दवाले के अंदर जो जन्नती रहेंगे उनका क्या हाल होगा। उसके अंदर जो अल्लाह ताला ने अपने जन्नती बंदों और बंदियों के लिए मेहमान नवाजी का इंतजाम किया है, जिसके खजाने में किसी चीज की कमी नहीं, क्या हाल होगा मेरे भाइयों। इसी तरीके से अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनन तिरमिज़ी की रिवायत है कि जन्नत के 100 दरवाजे दर्जात हैं, 100 मंजिला कह लीजिए समझने के लिए, 100 स्टेप, 100 फ्लोर कह लीजिए समझने, 100 दर्जात हैं। हर स्टेप, हर फ्लोर के दरमियान उतना फासला है जितना जमीन और आसमान के दरमियान फासला है।
जिसका साया कितना लंबा होगा, कितने दूर तक का, कि एक घुड़सवार 100 साल तक घोड़े पर सवार होकर के चलता रहे। और वो दूध से ज्यादा सफेद और शहद से ज्यादा शीरी और मीठा होगा, और उसके पीने के लिए चांदी के पियाले उतने होंगे जितना आसमान के अंदर सितारे और तारे हैं। और इसी तरीके से बहुत सारी बहारों का जिक्र अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ अहादीस के अंदर किया है। मेरे भाइयों साथियों, जन्नत, वमा अदराक अमल जन्नत, हमें क्या पता कि वो जन्नत क्या है, लेकिन बड़ी महंगी है, बड़ी कीमती है, लज्जतों और ख्वाहिशात से भर दी गई है। जन्नत को पाने के लिए अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा, अपने दिल में ईमान और तकवा बिठाना पड़ेगा, अपने दिल में अल्लाह की कदर और अल्लाह के हकामात की कदर करनी पड़ेगी, अल्लाह की रोकी हुई चीजों से रुकना पड़ेगा। मेरे भाइयों साथियों, जन्नतियों के चेहरे चमक रहे होंगे, दमक रहे होंगे, रोशन होंगे, और जन्नतियों की आंखें कुदरती तौर पर सुरमगी होगी, जिसको क्या कहते हैं, सुरमई आंख। और जन्नतियों के सर के बालों के अलावा उनके पूरे बदन पर कहीं एक बाल या एक रोवा भी नहीं होगा, ना एक बाल होगा, ना एक रोवा होगा, यहां तक कि दाढ़ी और मोछ के बाल भी नहीं होंगे, और गैर खतना किए होंगे। जैसा कि बचपन में एक बच्चा बिल्कुल चिकना, बिना खतना किए हुए और बिना मोछ और दाढ़ी के, दुनिया के अंदर मोछ और दाढ़ी ये जीनत है, ये शरीयत का एक हुक्म है, इसके आदाब है। लेकिन जन्नत के अंदर गोरा चट्टा होगा, उसका चेहरा मुनव्वर, ताबनाक और रोशन होगा, पूरे जिस्म पर कहीं भी एक रोवा या एक बाल नहीं होगा। जन्नतियों की उम्रें 30 से लेकर के 33 साल की होगी। जन्नतियों की उम्रें, चाहे वो मर्द हो और चाहे औरतें, उनकी उम्रें 30 से 33 के दरमियान होगी। और जन्नत के अंदर ना ही बिल्कुल दरमियान, उनका कद जानते कितना होगा जन्नतियों का कद? आप सोच भी नहीं पाएंगे, अंदाजा भी नहीं लगा पाए। कमो बेश 90 फीट के होंगे, कमो बेश 90 फीट का कड़ियल नौजवान, जिसके जिस्म में कोई रोग नहीं, जो कभी थकेगा नहीं, कभी बीमार नहीं होगा, और जो चमकीली आंख, सुरमई आंख वाला होगा, गोरा चट्टा होगा,
सोने का कंगन पहने होगा, सर के खूबसूरत बाल होंगे, वगैरह वगैरह। जन्नती लोगों को अल्लाह ताला हर गलाजत, हर निजासत, हर बदबूदार चीज को से पाक रखेगा। ना वहाँ नाक बहेगी, ना बलगम आएगा, ना कान से मैल निकलेगी, ना आँख से कीचड़ निकलेगी, ना पाखाना पेशाब की ज़रूरत होगी, जिस्म से पसीना निकलेगा। और जन्नतियों का पसीना मुश्क अंबर से भी कहीं ज़्यादा खुशबूदार और महकदार होगा। हुस्न जमाल, जन्नतियों के हुस्न जमाल हीरे और जवाहरात, लूलू और मरजान की मोतियों से भी कहीं ज़्यादा हसीन और जमील होंगे। चाहे वो जन्नती दुनिया में काला रहा हो या गेहूं कलर का रहा हो, लेकिन जन्नती जन्नत के अंदर जाने के बाद अल्लाह ताला उस पर करम करेगा, उसे जहां जवानी अता करेगा, जिस्मानी दिगर ताकतें अता करेगा, इतना हसीन व जमील बना देगा उसका चेहरा, इतना हसीन व जमाल बना देगा कि अगर जन्नती दुनिया के अंदर झांक दे तो मशरिक और मगरिब, पूरब और पश्चिम के दरमियान हर चीज रोशन हो जाए और फिजा पूरी की पूरी मुअत्तर और खुशबूदार हो जाए, जैसा कि बुखारी शरीफ की रिवायत है। यह जन्नत की बहारों से जुड़ी हुई चंद बातें मैंने आप हजरात के सामने रखा। सुनने के साथ साथ ख्वाहिशात उभरे होंगे, दिल में ये जज्बात जागे होंगे कि ऐ काश अल्लाह ताला हमसे राजी हो जाए और हमें इन जन्नत के बहारों से माला माल कर दे। यकीनन अल्लाह का वादा है मोमिनों के लिए, मुत्तकियों के लिए, परहेजगारों के लिए, अल्लाह उसके रसूल की इताअत करने वालों के लिए। अल्लाह ताला ने वादा फरमाया अपने करीबी बंदों के लिए। चुनाचे हमें अल्लाह ताला का मुकर्रब बंदा ईमान के साथ, इखलास के साथ बनने की कोशिश करनी चाहिए। उन रास्तों को अपनाना चाहिए जिससे हम अल्लाह के करीबी बन सकते हैं, और हर उस काम से हमें तौबा करनी चाहिए, बचना चाहिए, परहेज करना चाहिए, जिससे हम अल्लाह की रहमत से धुतकारे जा सकते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि रब्बुल आलमीन हम तेरी कमज़ोर मखलूक में से एक मखलूक हैं, हम तेरे दीन को मानने वाले हैं, तेरे ऊपर ईमान लाने वाले हैं, तेरे नबियों पर ईमान लाने वाले हैं, क़यामत के दिन पर ईमान लाने वाले हैं, जन्नत और जहन्नम पर ईमान लाने वाले हैं, तेरी तमाम आसमानी किताबों पर ईमान लाने वाले हैं, तेरे फरिश्तों पर ईमान लाने वाले हैं। मौला हम गुनहगार हैं, हमारे गुनाहों पे पर्दा डाल दे और हमारी तौबा कबूल फरमा, ज़्यादा तौबा करने वाला और सफाई इख्तियार करने वाला बना। और मौत से पहले अल्लाह ताला तो हमें सच्ची तौबा करने की तौफीक अता फरमा। जो ज़िंदगी अता की है रब्बुल आलमीन, तो इस अपनी दी हुई ज़िंदगी को और अपनी दी हुई दिगर नेमतों को अपने आप तुझको राज़ी करने में लगाने की तौफीक अता फरमा और कबूल फरमा। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा व आखिरु दअवाना अनिल हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन।